no matter what argument or logic any person brings forth, you won't give it any credit because you have seen it happen. तुम किसी भी नॉर्मली भी तुम बात करो, ठीक है, डज इट एट ऑल मेक सेंस कि हमने कागज पे रुमाल रखा, हमने किसी बेटी से प्रार्थना करी और उस पर जवाब बदल लिया, उस पर जो लिखा है वो बदल लिया, तुमने जो भी सवाल लिखा था उसका आंसर आ गया, ये बहुत मनगढ़ंत सुनाई देगा, right? It happens in India, man. एक book है, ठीक है, it was written in 50s by a guy named Paul Brunton. He came from Europe in India to find spirituality, and by God, he found it. The book is called A Search Lies in Secret India, गुप्त भारत की खोज. You are listening to The Chupacabra Show. I request like anyone and everyone and you especially to read it once. This is the kind of literature I grew up, and that's, I guess, one of the first book I read in my life. And it was in Hindi. Hindi is a very complicated language when you read it. But originally I think English में ही है, so must read है. उस बुक के अंदर 1950s में एक बंदा इंडिया आता है to find spirituality. And in search of spirituality, he meet a lot of people. And initially, whomsoever he meets are these kind of people who show you these tricks, basically. And Paul Brunton keeps seeing them, but उसको satisfaction मिला ही नहीं कभी इनसे. Then he met, towards the end, he met Maharshi Raman. Maharshi Raman के बारे में सुना है? There's a famous photograph of Maharshi Raman where you can see him walking by and there are puddles of water around and you can't see his shadow. वो photo भी है internet पे. ठीक है, my friend found it out once and sent it. So, bhai, Maharshi Raman gave him the right idea of what is spirituality. What I understand through the book is basically there are two planes, physical and spiritual. And if you can't find a balance in both, so that's the Buddhist way where the Gautam Buddha went. Okay, he suffered his physical body to find the spiritual enlightenment. Because his body suffered a lot, his physicality went in veins. बेसिकली आप स्पिरिचुअलिटी को जब परस्यू कर रहे हो ना, तब आपको अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल प्लेन का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड किड्स एंड व्हाट नॉट. वंस यू गो इनटू स्पिरिचुअल प्लेन यू गेट डिटैच्ड लाइक दैट. प्लीज रीड दैट बुक. There is this physical plane where we live in, that's called reality, and there is this spiritual plane which is called Sukshma Jagat. Sukshma Jagat में the time and the space matter is completely different in Sukshma Jagat. It doesn't work like us. So for example, if you want to go to 50 kilometers, it will take you 1 hour because physically it has to happen. But in Sukshma Jagat, it can happen in an instance, like half a second or something. So वो जो पेपर रखते हैं और पेपर पे आंसर आता है, and whomsoever that deity or that soul is who is finding that answer and found that answer, that's why it is so fucking fast and it looks like a trick, because they don't have that foundation of physicalities. And we right now, as like 2024 man, we are very weak in spirituality. See what Really what I am actually feeling right now, I'll tell you honestly. ठीक है, तो तुम बता रहे हो और तुम जिस लहजे में बता रहे हो और तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, बिकॉज आई नो kind of sort of the kind of person you are. I believe in the truth of what you are telling, but I won't be able to believe the truth of the truth that you are trying to tell me until I experience it myself. हमारी ना एक मेंटल कंडीशनिंग होती है जिसमें वी आर वेरी क्विक टू जज पीपल बेस्ड आउट ऑफ देयर अपीयरेंस. और ये वाले जो लोग होते दे डोंट केयर अबाउट हाउ दे लुक, दे डोंट केयर अबाउट लाइक उनका जनरल अपीयरेंस जो होता है, बाबाज एंड नागाज एंड ऑल ऑफ दीज पीपल वेरी डिफरेंट. ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं, मैं बता रहा हूँ. हाँ बता रहा हूँ जैसे एक जनरल परसेप्शन जो है, ठीक है, लोगों का जो पीपल हु शो यू दीज ट्रिक्स एंड ऑल, इसमें बहुत सारा वो भी है ना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, चोर चपाड़ी जो होता है, हाँ है ना, वो भी अपना कुछ भी करके लोगों को चुतिया बनाते हैं, गाँव पढ़े लिखे नहीं है, या बेसिकली जो भी वल्नरेबल है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन. ठीक है, इफ आई एम वल्नरेबल आई विल टेक एनी सोलेस. This guy I met when I was like 8 years old or something. He's like a bhaiya to me.
And he was a very chilled out guy. He used to live in Delhi and everything. Kid, I used to go to Delhi, I used to go to him. And that guy was very chilled out, very material to nahi tha isne, but he was in that material world, living that material life. He had a girlfriend and everything. Slowly by slowly, he turned towards spirituality in 12-15 years. And when he was like 1 year into spirituality, I met him because he used to meditate for 4-5 hours or per day. I met him, I recorded him. He was hinged on something ke, where does the thought comes from? Uski inquiry kaun karega? क्या बात है यार, क्या सोचा है उस बंदे ने? And there is a whole recording of it which I fucking can't publish because वो recording phone से हुई है. There is a lot of background noise in it. There's stupidity है तो उसको clean ही नहीं कर पा रहा मैं अभी तक. ठीक है, I tried my best, it was not happening. अब basically उस बंदे को मैंने दूसरी बार वापस मिला था. ठीक है, after that inquiry वाला thing happened and I met him again 6-8 months later. And we started talking again about the similar topic of his meditation and his spiritual journey. And he told us, अब जो scenario चल रहा है, it's very hardcore. So in his sleep, he experienced beating. कि वो सो रहा है बंदा और उसको ऐसा लग रहा है कोई उसे कोड़े मार रहा है. ओ भाई, तुमने क्या बात याद दिलाई मुझे. I can tell you one more story. हाँ, do. पर्सनल एक्सपीरियंस का. तो ये इंसिडेंस जहाँ पे हुआ वो एक आश्रम टाइप स्पेस है. इट्स नॉट रियली एन आश्रम, ये हम स्पिरिचुअल रिट्रीट्स कराते हैं वहाँ पे. मैं वहाँ पे लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है, सारे पैसे वैसे ख़त्म हो चुके थे. आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई वाज रेडी टू डू एनीथिंग एंड आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी. दिल्ली में थी. दिल्ली इज़ लाइक उस टाइम पे दिल्ली मेरा बेस हुआ करता था कोरोना से पहले का, और उस टाइम तक मेरे दोस्त थे. बट सिनेरियो सेम था. बेसिकली पैसे ख़त्म हो चुके थे. ट्रैवल करके आई हैड एग्जॉस्टेड एवरीथिंग, एवरी पेनी. पैसे चाहिए थे मेरे को. टुक द जॉब, वेंट देयर. मुझे पता था कि मैं किस स्पेस में जा रहा हूँ. मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गया था. उसका जो डायरेक्टर और जो बंदा, मेन बंदा जो था, जो सब रन करता था, यूज्ड टू रन इट लाइक अ स्टार्टअप. छोटी सी टीम थी, मार्केटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था. और आश्रम स्पेस में ही एक अलग से रिट्रीट एरिया भी था जहाँ पे लोग रहते थे. काफ़ी बड़ा छतरपुर में एक फार्म हाउस है. मैं उस बंदे से मिला. वो मुझे आधे घंटे तक बैठा रहा मेरे सामने. बिस्तर पे अपने लेटा हुआ था, शायद सो के उठा था. वो बस ऐसे बैठा लेटा रहा और आधे घंटे तक मुझे देखता रहा. फिर आधे घंटे बाद कुछ एक सवाल पूछा उसने. मैं पेशेंटली बैठा रहा. मैं भी मुस्कुराता रहा पूरा कि ठीक है भाई, तू पढ़ ले, मुझे जितना पढ़ना है. कुछ सवाल एक पूछे. आधे घंटे बाद मैंने जवाब दिया. बहुत ही जेनरिक सवाल, अपने बारे में कुछ बताओ, मतलब क्या किया है तुमने, ऐसा काम किया है पहले, काम से रिलेटेड. नथिंग लाइक कि मेरी अंतरात्मा में झाँक रहा है वो. और मैंने जवाब दिया. उसके बाद फिर वो चुप हो गया 15-20 मिनट के लिए. फिर मुझे देखता रहा. मैं अभी बैठा मुस्कुराता रहा. और फिर कहता है हाँ ठीक है, इससे वो एक पेपर भरवा लो ज़रा. और मैं बाहर निकला और जो बंदी मुझे, जिसने इंटरव्यू अरेंज कराया था, उसने बोला आई थिंक हो गया तुम्हारा. बोला ठीक है, बता देना जो भी है. मेरा हो गया, मैं पहुँच गया वहाँ. व्हेन आई वाज गेटिंग ओवर देयर, आई हैड वेरी क्लियर आइडिया इन माई हेड मैं काम करने जा रहा हूँ. मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है. मुझे, आई एम अ वेरी साइंस मैन. आई हेट इट व्हेन पीपल try to use someone's vulnerability to profit themselves in any way, like not just monetary. फिर वो चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे किसी भी टाइप की यूज़ कर रहे हैं. अगर किसी की वर्नरेबिलिटी का आप समझ गए कि ये आदमी वर्नरेबल है, तो वो उस चीज़ से मुझे सख्त नफरत है. और बड़े अप्रीहेंशन के साथ गया वहाँ पे. एंड देन स्लोली लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट, इट स्टार्टेड चिपिंग दैट ऑफ, है ना. वो सडन एकदम से नहीं जाता है आपका कि आप पहुँचे और कुछ चमत्कार सा हो गया और सडनली और लाइक यू फीलिंग डिफरेंट. यू आर, मतलब अरे नई दुनिया, नया ज्ञान, नई रोशनी. ऐसा नहीं होता है. धीरे धीरे चिप होता है. I believe it has a lot to do with the environment, like the kind of immediate environment you are in. It affects your all the 3 states of your being, physical, mental, emotional. तीनों एस्पेक्ट आपके बहुत ढंग से डिफाइन हो जाते हैं. आप अपनी सराउंडिंग कैसे रखते हो उसके बेसिस. वहाँ पे हम रोज़ सुबह मेडिटेशन करते थे. वहाँ पे मैं नए नए लोगों से मिल रहा था. नए नए मास्टर्स आते थे. नई नई उनकी जो है, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये साउंड हीलिंग जैसा भी कुछ होता है. ये साउंड कैन एक्चुअली बी यूज्ड टू हील पीपल. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट एंड देन आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. ये तंत्रा, मुझे लगता था तंत्रा ये सब ठरकी लोगों को सेक्स करने का बहाना चाहिए बस. मेडिटेशन मुझे लगता था कि भाई लोग परेशान हैं, शांति से बैठ जाते हैं, शायद यही होता है मेडिटेशन. उनको लगता है कि हाँ कुछ तो मेरी लाइफ में सही चल रहा है. And then slowly it started chipping off. I met such amazing people. मुझे पहले कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि तुम किसी से मिलो और तुम उसकी वाइब समझ सकते हो. मुझे लगता था कि बहुत सारा प्रिटेंस है दुनिया में, किसी के अंदर तक देख पाना बहुत मुश्किल होता. This is what I'm like, I'm just being very honest with you.
only trying to, why I'm explaining all of this is because I wanted to understand what kind of mindset I went there with and with what kind of mindset I went out. So you can track the projection, like you can project my journey there. और फिर ये मैं ऐसे मास्टर से मिला, एक तो है माँ लोका, उनको मैंने देखा और मेरे मुंह से माँ निकल गया और मैं पहली बार मिल रहा था उनसे। और आज तक कभी मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को देखूं और मेरे मन के अंदर से जो है वो माँ टाइप फीलिंग आए या ऐसा कुछ प्यार सा महसूस हो किसी और के लिए in terms of the motherly love. And she was meeting me for the first time. She hugged me and we hugged for 3-4 minutes. And you cried? I didn't cry. No, you didn't? I didn't cry. Okay. पहली बार रोने का मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था वो था शमानिक जर्नी पर। ये क्या है? शमानिक जर्नी एक रिचुअल होता है। एनीवे शायद नॉर्थ अमेरिका साइड है, तो नॉर्थ अमेरिकन शमानिक एक रेड इंडियंस के वो होता था, रिचुअल होता था जिसमें शामन्स जो है तुम्हें साउंड और सेंट के थ्रू एक जर्नी पे लेके जाते हैं। मतलब वो क्यूमुलेटिव होता है, 10 लोग लेटे हुए हैं, ठीक है, यू आर सपोज टू स्लीप इन दैट प्रोसेस, इन दैट ड्यूरिंग दैट रिचुअल, एंड द शामन विल कीप टेलिंग यू, कीप टेकिंग यू ऑन अ जर्नी थ्रू हिज वर्ड्स। साउंड होगा, सेंट होगा, शामन तुम्हें जर्नी पे लेके ऐसे जाता रहेगा कि अभी आप यहाँ पर हो। इट स्टार्ट्स वेरी जेनरिक एंड ऑल यू हैव टू डू इज लाइक यू जस्ट हैव टू पिक्चर इट, लाइक ट्राई टू विजुअलाइज इट, एंड इवन इफ यू आर नॉट ट्राइंग, आफ्टर अ बिट एक्चुअली जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट. And if you go really deep into it, you'll feel your presence in that scenario. Now, the interesting thing about shamanic journey is that the shaman is there and he's created a scenario, or he's whatever journey he's taking you through it. It's same for everyone, but you will see something else. I will see something else. Everyone will see something else based on their experiences and based on where their actual knot is. मतलब तुम्हारा trauma कहाँ पे फंसा हुआ है, उसके basis पे तुम अपनी जगह जाओगे. उसमें एक point ये आया था, when I started going ahead of the journey, like whatever shaman was telling me, I started going ahead of it. मुझे कुछ नहीं पता कि मैं उस टाइम पे क्या फील कर रहा था. एक टाइम ऐसा आया कि I was feeling totally empty. I went into fetal position almost 5 minutes before the shaman asked everyone to go into the fetal position. And I was crying. उसमें ये भी instruction होता है कि at any point of time, if it gets too much for you, because you are blindfolded, you wear a robe, anything like something which doesn't have any elastic or doesn't hold your body anywhere, and they give you blanket or something to cover yourself up as well. उसमें the only rule is you cannot speak. तुम्हारे लिए ज़्यादा हो रहा है, तुम ऐसे हाथ खड़ा कर दो, हैंड साइंस होते हैं, वो आएंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तुम्हें बाहर हॉल के बाहर छोड़ देंगे. तुम ऐसे कर दो कि तुम्हें पानी चाहिए, तो आके तुम्हें पानी पिला देंगे. प्रॉपर 40 मिनट्स का प्रोसेस होता है, 40 मिनट्स 1 आवर का. तो इसके लिए एक असिस्टेंट लगता है. तो दैट असिस्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो लाइक, ऐसा नहीं कि किसी को भी असिस्टेंट बना दिया और जो एक्चुअली उस स्टेट में है वही असिस्टेंट होगा. शी केम एंड शी हेल्ड मी, शी हग्ड मी, शी kept rubbing my back, और बहुत उसने मुझे कंसोल करने की कोशिश करी. लेकिन उस टाइम मुझे कुछ मतलब ज़रूरत ही, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था उस टाइम. तो मुझे बस रोना था और मैं रोया.